And okay, let's do this. So, day 3, the magical relationships, one of the most beautiful chapters or most beautiful practice in this whole series or in this book, May, is the magical relationships. And the one thing, like I always want to highlight it to people is बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, which is good. There's nothing wrong. Even I started with that thought. But Rhonda Byrne बहुत ही सटल वे में वो एक फाउंडेशन सेट करती है कि आप अब बहुत अच्छा पैसा बना लोगे, बहुत अच्छा जॉब ले लोगे, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले लोगे, बट अगर आपके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है ना उन न्यूज़ को, उन सारी अचीवमेंट्स का लाइफ में इम्पैक्ट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, अगर आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है जिनके साथ वो आप अच्छी न्यूज शेयर करो। एंड दैट्स व्हाई डे 3 का जो ये प्रैक्टिस है, जो थर्ड प्रैक्टिस है यहाँ पे, सुबह में आपने ग्रेटिट्यूड किया चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में आपने रात को ग्रेटिट्यूड किया, और उसके बाद पूरे दिन में जो वो फर्स्ट चीज करवा रही है हम लोगों से, दैट इज वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, मेक योर रिलेशनशिप्स गुड, सो दैट उसके साथ आपकी लाइफ में जो जो अचीवमेंट आती चली जाएंगी, यू कैन शेयर दीज बिग अचीवमेंट्स, बिग न्यूज, गुड न्यूज, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की किसी के साथ, एंड इट्स गोना ओनली make those blessings even bigger. So with that, let's start the chapter. Imagine if you were the only person on earth. You have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? मोटिवेशन आपकी खत्म हो जाती है जब आप वर्ल्ड में, लाइफ में सिर्फ अकेले रह जाते हो. There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. The whole world is going to be empty. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. इस पूरी उसका जस्ट ये है कि अगर आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स है ना, everything else in your life, achievements, good news, blessings, जो भी आपको यूनिवर्स देगा, वो सब कुछ हाईलाइट होके बाहर निकलेगी जब आप उन सब चीजों को किसी के साथ शेयर कर सको वर्ल्ड में. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. This is actually very true. And I can tell you with my experience कि जब से gratitude start करना शुरू किया था मैंने लाइफ में, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो आप किसी के साथ, आपकी एम्पैथी बढ़ जाती है, यू कैन सी अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, यू फॉरगिव देम लॉट मोर इजी, वो ग्रजेस नहीं रहती अंदर, बहुत इजी लाइफ स्मूथली सबके साथ चलती रहती है. जो लाइफ में रुक गया वो बहुत बढ़िया, जो नहीं रुका वो उनसे भी बढ़िया, बट यू डोंट होल्ड दैट ग्रज एनीबॉडी फॉर एनीबॉडी. But probably the most astounding statistic that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Now, this is another key in this chapter. Agar hum kisi ke bare mein, let's take an example, because we are all women here. If we complain about our husbands, आप उनकी एक कंप्लेन करो, उस एक कंप्लेन को नलीफाई करने के लिए आपको उनकी 10 ब्लेसिंग्स को गिनना पड़ेगा.
सेम थिंग गोज विद एनी रिलेशनशिप, आपके बॉस के साथ, आपके बच्चों के साथ। मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, मैं सुबह से बना बना के थक गई, 4 चीजें बना दी फिर भी नहीं खा रहा। आप एक कंप्लेन अगर करते हो तो उसको नलीफाई करने के लिए आपको मिनिमम 10 ब्लेसिंग्स उस रिलेशनशिप की, उस इंसान की लिखनी पड़ेंगी, रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशनशिप, कि वो आपका रिलेशनशिप आगे अच्छे डायरेक्शन में अच्छी तरह से फ्लरिश हो। Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. I don't think I have to say anything more than this. Gratitude makes relationship flourish. कभी सोच के देखा है, why does gratitude makes relationship flourish? बिकॉज सी, इसके पीछे की बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जब आप सामने वाले बंदे के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, दैट मीन्स आप उनको थैंक यू बोल रहे हो फॉर लिटिल 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 थिंग्स जो उन्होंने आपके लिए की, उनके अच्छे बिहेवियर के लिए। जब आप अपना सारा ध्यान उस अच्छी चीजों पे लगा देते हो, आपको उनकी गलतियां दिखती नहीं है। अगर दिख भी जाए तो आपके दिमाग में वो जो आपने पहले उनके बारे में 10 20 30 अच्छी चीजें उनकी काउंट की, आप लोग अरे कोई बात नहीं यार, एक ही तो चीज है, 20 चीजें तो अच्छी की ना। तो आपका जो फोकस है वो ऑलमोस्ट अच्छी चीजों पे इतना ज्यादा फोकस हो जाता है कि आपको एक आधी छोटी मोटी गलत चीज दिखती ही नहीं है। As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in the relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. How does it change you now? रिलेशनशिप तो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, बिकॉज आपका फोकस अच्छी जगह पे चला गया। हाउ डज इट चेंज यू? बिकॉज हमने पहले दूसरे दिन बहुत इस पे बात की है। आपका फोकस जहां पे रहेगा, आपकी लाइफ में वही चीजें आएंगी। अगर आप उनके अच्छे बिहेवियर को फोकस करेंगे, व्हाट डज इट मीन? उनका बिहेवियर आपके साथ और भी अच्छा होता चले जाएगा, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, वर्क पे हो, घर में हो, बच्चों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, अपने सिबलिंग्स के साथ हो। जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह का फोकस आप किसी भी रिलेशनशिप में डालोगे, सेम वही चीज आपके पास मुड़ के मेनी फोल्ड्स वापस आएगी। नो मैटर what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. And this is very true. जो पहले गॉसिप करते थे हम, खुद को भी मैं गिनती हूँ उसमें, दूसरों की छोटी छोटी चीजों पे पीछे मुड़ के हंसना, अरे उसने तो ऐसे कर दिया, अरे सोता आता नहीं है, अरे उसे तो पता ही नहीं है, अरे उसको क्या पता चलेगा अगर हम ऐसे कर रहे हैं। आपने उस इंसान के साथ कुछ भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, आपने अपने थॉट प्रोसेस उसके साथ चेंज कर दिए। जब आपने वो उनके ऊपर हंसना कम कर दिया, उनको तो पता ही नहीं है, उनको क्या समझ में आएगा, उसको सबको इरेज करके सिर्फ आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो क्या होगा? छोटी मोटी गलतियां उनकी दिखेंगी नहीं, जैसे हमने बात किया। इन रिटर्न वो आप में क्या कर रहा है? कंपैशन। अगर उनसे कभी गलती हो भी जाती है, इट्स ओके, बाकी की तो 15 चीजें कितनी अच्छी की मेरे लिए, पिछले हफ्ते मेरे लिए ये भी आया था। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, काइंडनेस आपकी बढ़ेगी, फॉरगिवनेस आपकी बढ़ेगी, टू द पॉइंट कि आपका डिमीनर लाइफ में चेंज हो जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस आई एम जस्ट सेइंग बाय with my own experience with myself, and I have seen some people who have been long time practitioners. डिमीनर लाइफ में चेंज हो जाता है, गुस्सा नहीं आता, छोटी छोटी बातों का तो पता ही नहीं लगता, अच्छा ये भी हो गया क्या, इट्स ओके, व्हाट्स द बिग डील, इतना सब अच्छा चल रहा है लाइफ में, इसके ऊपर कहाँ मैं छोटी सी चीज पे फोकस करूं। The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Why? Once again, and I know I'm repeating myself, but it is very important to understand. रिलेशनशिप सब अच्छा है, मगर आपका जो फोकस है ना,
वो सिर्फ आपकी अच्छी चीजों पे रहेगा, छोटी छोटी चीजों को आप नजरअंदाज करते चले जाओगे. Because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. This is the key. कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर सुना होगा कि हमारे चाहने से कोई दूसरा आदमी चेंज नहीं होगा. हम चाहें कि वो सुबह जल्दी उठे, बिकॉज मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, वो सुबह वॉक पे जाए, वो ये खाना अच्छा नहीं है न्यूट्रिशन के लिए वो ना खाए. हमारे कहने से कोई भी नहीं चेंज होगा. बेशक छोटे छोटे बच्चे हमारे थोड़े दिन जब तक वो छोटे हैं सुन लें, पर जैसे ही वो टीन एज में आते हैं, बड़े सिबलिंग्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, इन लॉज, पेरेंट्स, हमें कहाँ पे पहुंचना है. हमें किसी को चेंज करना ही नहीं है. हमें सिर्फ खुद को चेंज करना है कि हम उनकी सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहें जो वो अच्छी चीजें कर रहे हैं. हमें खुद का फोकस शिफ्ट करना है. यू वॉन्ट क्रिटिसाइज, कंप्लेन अबाउट और ब्लेम देम बिकॉज यू आर टू बिजी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स अबाउट देम. वंस अगेन, कोई नहीं चेंज हो रहा. हमने सिर्फ खुद को चेंज किया, अपना फोकस चेंज किया, एंड वी टुक आवर फोकस वेयर, to look at their good things, to look at their good behavior, to look at everything that they're doing for us. In fact, you won't be able to see the things you used to complain about. And this is so true. यही चीज मैं I think already 5 से 6 बार different different words के साथ बोलती जा रही हूँ कि आपको वो दिखेंगी ही नहीं छोटी छोटी चीजें. आपको वो गुस्सा ही नहीं आएगा. कुछ दिख भी गया तो ठीक है यार, छोड़. इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, उन पे फोकस करो. राइट? वो माइंड शिफ्ट आपका चेंज हो जाएगा. नाउ थॉर्टन वेल्डर एक राइटर एंड प्ले राइट है, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कोट. वी कैन ओनली बी सेट टू अलाइव इन दोज मोमेंट्स when our hearts are conscious of our treasures. इसके इस थॉट के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हिंदी इंग्लिश में सब में आ चुके हैं, बट बेसिकली इसका जिस्ट क्या है? We are only alive in the moments when our heart is happy and conscious of our treasures or blessing. जिन moments में आप अपनी blessings को गिन रहे हो, gratitude में रह रहे हो, those are the time when we are really alive. इसका opposite क्या है? जिन moments में हम किसी की बुराई कर रहे हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो कहा था पर वो भी नहीं किया, इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया, जब भी हम इस तरह की थॉट प्रोसेस में होते हैं, वी आर नॉट रियली अलाइव. वी आर जस्ट चगिंग अलोंग इन लाइफ, अनहैप्पी हैं अंदर से, ग्रजेस पाल रखी हैं, नॉट अ हैप्पी सिचुएशन इन लाइफ. तो हमारा फोकस वंस अगेन कहाँ पे रहना चाहिए? ग्रैटिट्यूड में. अच्छी चीजों को सोचो, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो. Those are the times when we are going to be very happy, truly happy. Not सिर्फ दिखाने के लिए, but अंदर से calm, content and true happiness. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. देखो, जब आप किसी की कंप्लेन कर रहे हो, आप किसकी लाइफ को हार्म कर रहे हो? आप उनकी लाइफ को हार्म नहीं कर रहे. वेरी क्लियरली व्हाट रॉन्डा बर्न इज सेइंग इज यू हार्म योर लाइफ, आपकी अपनी लाइफ. इट इज योर लाइफ दैट विल सफर. दूसरे बंदे को तो शायद पता भी नहीं होता कि आपको कुछ उनका पसंद नहीं आया, या हम अंदर ही कुड़कुड़ कर रहे होते हैं, या हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, या हम उनके पीछे से उनके ऊपर हंस रहे होते हैं. किसकी लाइफ, किसका टाइम हम खराब कर रहे हैं? अपना. Why? Again, by the law of attraction, whatever you think or say about the another person, you bring it to you. रोज हम इस बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. जैसा सोचोगे, जैसा बाहर भेजोगे, वो वापस आएगा. कंप्लेन्ट्स भेजोगे और कंप्लेन्ट्स के कारण वापस आएंगे. शिकायतें भेजोगे और शिकायतों के कारण आपकी लाइफ में वापस आएंगे. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी इस बुक्स में, इस पर्टिकुलर बुक में कोट्स हैं, ये लोग सब जाने माने मिलीनियर, बिलीनियर्स,
highly achieved people, highly recognized people by the other people in the world, सब के सब यही कहते हैं कि आप लाइफ में ग्रेटफुल रहो. They knew that for you to receive more in life, for your life to be magically increase, you have to be grateful for others just as they are. Now, this is the key. हमें जब किसी के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं ना, हम बोलते हैं अगर ये मेरे लिए ये कर दे ना तो ये बंदा बड़ा सही है, ये मेरे लिए ये कर दे तो ये बंदी बड़ी सही है मेरे लिए. But what do we have to learn? We have to be grateful for everybody in our life just as they are. जैसे वो हैं, आप उन्हें नहीं बदल पाओगे, आपको उन्हें बदलने की जरूरत भी नहीं है, आपका काम नहीं है. अगर उन्हें भगवान ने किसी तरह से बना के भेजा है, भगवान को आप क्या कहना चाहते हो? तूने ठीक नहीं बनाया, मैं इस बंदे को ठीक करूंगी, वो पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर अदर्स just the way they are, just as they are. What if every person close to you said to you, I love you just the way you are? सोच के देखो, अगर हमारी लाइफ में हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, हम 4 लोग इस ग्रुप में हैं, अगर आप, एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अगर आप लोग मुझे बोलो इस तरह से नहीं, इस तरह से समझाओ, या मैं आप लोगों को बोलूं इस तरह से नहीं, ऐसे बैठो, ऐसे तैयार होके आओ, हाउ विल इट हेल्प? पूरे ग्रुप की एनर्जी नेगेटिविटी में चली जाती है, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम 4 लोग भी आपस में बैठ के बोले आई एक्सेप्ट यू एंड आई लव यू जस्ट द वे यू आर, सब लोग कितने ईज में आ जाते हैं, सब लोग आराम से, सबके कंधे नीचे हो जाते हैं, किसी का स्ट्रेस में कंधा ऊपर नहीं रहता उस समय, राइट? सो कभी भी अगर किसी को बदलने की दिमाग में ख्याल भी आए ना, इस चीज को हमेशा याद रखो, हाउ विल आई फील इफ people around me accept me the way I am, and if they all tell me they love me the way I am, how will I feel? मेरी लाइफ कितनी स्ट्रेस, मेरा पूरा एक सांस में बाहर निकल जाता है. That is how we have to do with others. So आज की प्रैक्टिस, today's magical practice is being grateful for the people just as they are. हमें किसी को नहीं चेंज करना, वो जैसे हैं बहुत बढ़िया है, भगवान ने उन्हें बना के भेजा है, भगवान का थैंक यू बोलो, तूने बहुत बढ़िया इंसान बना के भेजा नीचे. And we are going to be grateful for these people just the way they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. अब आप ये नहीं सोचना कि भाई मेरे तो रिलेशन सब बहुत बढ़िया हैं, क्या करना है इसमें, क्या मेरे को मिलेगा. नो, जितने भी वो आपके हिसाब से वो बढ़िया हैं, when you go through this practice, and once again I say that with experience, रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हो जाते हैं, आसपास सही लोग आपके आने लग जाएंगे, जिन लोगों की आपकी जरूरत है वो लोग आपकी लाइफ में अपीयर होने लग जाएंगे, एंड यू विल बी अमेज्ड कि कहाँ से ये लोग मेरी लाइफ में आए हैं. जो लोग आपकी ऑलरेडी लाइफ में हैं, उनके पॉजिटिविटी में आप इतने खो जाओगे, आपको उनका नेगेटिव दिखेगा ही नहीं कुछ भी. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. आपकी इमेजिनेशन से ऊपर निकल जाएंगी चीजें. तो आज की प्रैक्टिस में हमने कल बोला था कि अपने किसी भी डियर एंड नियर की 3 लोगों की आपको पिक्चर रखनी है, राइट? Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, son, father, boyfriend, business partner, and your sister. You might choose the best friend, grandmother, uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or both of you together. Once you have selected the 3 relationships on the photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down. Let me ask first thing. सबने अपने 3 लोगों को चुन लिया था कल? या तो हैंड्स अप या कुछ?
Yes, I've done Good, it. good. Sit down and think about the things you are the most grateful for each person. आप उनकी फोटो लो और सोचो कि आप किस चीज के लिए उनकी सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for the patience, their ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes. आंखें बहुत सुंदर है बहुत लोगों की. उन स्माइल बहुत अच्छी है बहुत लोगों की. Kind heart, दिल के अच्छे हैं. You could be grateful for the things you enjoy doing the person. Sorry, you could be grateful for the things you enjoy doing with the person. Or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. आज अगर किसी का साथ नहीं मिल रहा है तो पीछे जाके ढूंढो कोई मोमेंट्स होंगे जहां पे साथ होगा, गुड टाइम्स होंगी, लाफ्स होंगे, शेयरिंग होगी. कोई भी अच्छा मोमेंट पकड़ो. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you. And with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. बहुत ही सिंपल. आप सेंटेंस को शुरू करो थैंक यू, नाम, फॉर, किस लिए, और 5 चीजें लिखो. एग्जाम्पल भी दे रही है रोंडा बर्न्स. Thank you, John, for always making me laugh. Such a simple example. Thank you, Mom, for supporting me through college. Very simple. सबके पेरेंट्स इतना करते हैं. When you have finished your list for all the 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name, thank you, Haley. सो आपने एक बार बैठ के उनकी 5 चीजें लिख दी जो आपको पसंद है या जिस चीज के लिए आप थैंक यू हो. और फिर उन फोटोग्राफ्स को आप दिन में अपने साथ में रखो. जब भी जहन में आए उनमें से किसी का भी नाम या तीनों का नाम, just say thank you to them. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. एक बार आपने लिख दिया. रोंडा बर्न कह रही है अपने साथ फोटो को रखो कम से कम दिन में 3 बार. मैं कहती हूं जब भी आपके जहन में आ जाए आप फोटो निकालो, देखो और उनको थैंक यू बोलो. 3 बार भी हो सकता है, 30 बार भी हो सकता है. ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल, राइट. पर जितना करोगे उतना वापसी मुड़ के अच्छी चीज वापस आएंगी. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. So magic practice number 3. So day 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं? Day 1 की प्रैक्टिस. आप सुबह उठ के अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखो. उसमें वाई जरूर लिखना है बिकॉज के साथ में, राइट. एंड वापस से उन ब्लेसिंग्स को पढ़ो और 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप उसको पढ़ने के बाद बोलना है. दिन में आपको क्या करना है? वो डे 1 वाली प्रैक्टिस थी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. दिन में आपको क्या करना है? Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person.
With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic word thank you. Include their name and what you are specifically grateful for or thankful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 लिमिट नहीं है. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Rhonda Byrne example दे रही है, thank you Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened to you during the day. कोई भी क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस में या पहले 2 दिन की प्रैक्टिस जो हमने बात की थी? Yeah, I have 2 questions. First thing, taking the picture because I spend most of the time over this table, and I have put the pictures of 3 of them over here on the notice board. So, is it okay कि like मैं उसको वहीं से देख के eyes contact करके और वहीं thank you बोल दूँ और I have to Totally. take, है ना? टोटली Okay. या आप वो भी कर सकते हो कि आप अपने फोन में दिन में 3-4 बार जितना भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपका स्केड्यूल है, जस्ट पुट अ रिमाइंडर. And just आप यहाँ thank पे you या something. No, या just thank. Okay. या Another thing, there is a situation in my side, like my brother got separated, and the ex one. Usually क्या होता है ना कि अभी जैसे उनकी अभी ही इज टेकिंग अ स्टैंड. अभी पास्ट के लिए अक्सर जैसे मुझे बोलना पड़ जाता है व्हेन द पीपल आस्क व्हाट हैपेंड. तो समहाउ बोलते बोलते मुझे रियलाइज होता है कि मैं वो नेगेटिव साइड जा रही हूँ. बट कभी कभी कुछ रिलेशन है जिनसे हमें कोई मतलब नहीं रखना है. तो क्या वहां पे भी इसका इम्पैक्ट रहता है? बिकॉज आई नो आई रीड द हंड्रेड लाइन. परसेंट या कि हंड्रेड फॉर परसेंट यू फॉर अदर्स. या 100%. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एंड दिस इज माय पर्सनल एग्जांपल. ओके, आप अभी 3 रिलेशनशिप्स में काम करोगे, वो रिलेशनशिप्स आपके मैजिकल होंगे, मगर आपकी लाइफ में कैसे नए रिलेशनशिप्स आते हैं, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दैट. आई वांटेड टू डू अ ट्रिप जहां पे मुझे बहुत वॉक करनी थी, राइट? Intentionally I wanted to do it. I was about to walk about 300 kilometers in a very 2 week window. It was a walking trekking trip. Okay, I wanted to do it myself because I wanted the peace. I did not want to make it a family trip. I did not want to make it a girls trip because not everybody can walk so much and not everybody thinks it is a good trip to walk so much. People want to go out for leisure, sit down, right? Somewhere God knew that I will need help of a person because I do have some breakdowns in my leg, right? अब आप सोच के देखो, मैंने भगवान को क्या बोला था कि मेरे को नहीं जाना किसी के साथ. आई वॉन्ट माई पीस ऑन दिस ट्रिप. भगवान ने फिर भी किसी को मेरे साथ जोड़ा इस ट्रिप में जाने के लिए. यू नो हु दैट पर्सन इज? दैट पर्सन इज अ डॉक्टर. एंड उस समय मुझे नहीं समझ में, एंड शी इज नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. शी इज एन acquaintance. But when she came to know I'm going on this trip, she said, I want to go. And I was like, okay, come, but I don't want to make this group big because I want to do it with a certain intention, right? And you will not believe, Sakshi, the way she managed my foot. And my foot has big breakdowns. People to realize that I'll be walking 300 kilometers in 2 week window, it's a big deal. But she got associated with me. She came with all the right stuff. और उसको मेरे फुट का पता भी नहीं है. उसको she just knows कि there was a mishap in the. But she had all the right things that I needed for this trip. She guided me as a family physician. मेरे को क्या करना है. मेरे फुट में कुछ भी होने से पहले उसने के टेप भी लगाई. She gave me the best medicines कि उसमें swelling ना हो. And you will not believe at the end of that trip, I walked I walked the full 270 kilometers without even a single blister on my foot. सुन के लगता है कि how is it possible, right? कहाँ से वो मेरे साथ जुड़ी? How can she? But
होने के बाद रेट्रोस्पेक्टिव में, like when I sat down to write all the gratitudes after the trip, retrospective में, why did she get associated with me? Because some power knew my foot needs care during mm, this trip, mm, right? Now let's go back to the question. The reason I was telling you this was, आप पहले दिन जब आप पहली बार प्रैक्टिस करते हो, दूसरी बार, तीसरी बार, आप अपनी क्लोज रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हो, राइट? mm, right. बट आपकी जो नई रिलेशनशिप्स बनेंगे, आपके बाकी के रिलेशनशिप्स भी जब आप आगे आगे इस पूरी बुक में प्रैक्टिस करोगे, everything starts to get impacted in such positive, powerful way कि आपको जब वो चीजें हो रही होती हैं, आपको like you are just in a awe. How? So Mm, अगर आप अपने उसमें जाओ, पहली बात तो like first of all, it's not my place. I do not give advice on the personal situations. First of all, right? But आप किसी के बारे में भी अगर नेगेटिविटी की तरफ जाते हो, mm, whether it is mm, फैमिली में या थोड़े से दूर जैसे आपका है, mm, इट्स गोना कम बैक। एक आप नेगेटिव बोल रहे हो, आपको उन्हीं के लिए 10 अच्छी बोलनी है। mm, सो कीप दैट इन योर माइंड, got it. राइट? एंड दूसरी दूसरी चीज में, लाइक, अगेन नॉट माई प्लेस, बट वन थिंग आई से इज, इट्स नॉट योर प्लेस टू से व्हाट हैपेंड। Oh, Like, okay. see, what are we trying to practice? We have to approve of everybody as they are, Mm, right? It's yes. not our place to say they are wrong. Mm, And it's for anybody. It's for anybody in the relationship, जो लोग हैं, जो लोग नहीं हैं relationship में, for everybody. Yeah, Sunita. I just want to add to Sakshi's thing that that she's saying कि जब औरों को उसको बताना होता है तो नेगेटिविटी बोलनी पड़ती है तो कैसे करे उसको। तो आई थिंक सिर्फ यूज द वर्ड दैट देयर वाज सम ब्रेकडाउन बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। तो कई बार क्या होता है हम अपने वर्ड्स को वी नो हाउ टू माउल्ड आवर वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ताकि हम वो नेगेटिविटी क्योंकि जितनी बार बोलेंगे उतनी बार वो घूम के आएगा तो सही वापस व्हाट गोस कम्स अराउंड। तो साक्षी कभी ऐसा मोमेंट आता है किसी से बात भी करनी हो तो बोल दो हाँ यार बहुत कुछ था बहुत सारा था आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स फिर बहुत ज्यादा ऐसे लगता है तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आई mm, जस्ट टू डाइवर्ट योर कन्वर्सेशंस। और मैं एक चीज और ऐड करती हूँ कि लाइक एज अ बिलीवर ऑफ गॉड मुझे लगता है कि जैसे हम भगवान जी के पास जाते हैं ना तो कभी हम मैं लड्डू ले जाती हूँ कभी मैं बर्फी ले जाती हूँ तो भगवान ने तो कभी नहीं कहा हाँ हाँ, मुझे लड्डू नहीं पसंद आज तो लड्डू क्यों लेकर आई है तो हलवा खाना है मुझे तो खीर खानी है। तो सेम वे ये हम सब भी तो भगवान की क्रिएशन है जो भी मेरे रिलेशनशिप है। तो द वे रोंडा सेज लव द वे यू आर आई लाइक यू द वे यू आर आई लव यू द वे यू आर। तो वो मैंने ऐसे मतलब अपने आप को को रिलेट किया हुआ है जब लाइफ में कुछ ऐसी चीजों से हम को रिलेट कर लेते हैं तो हमें याद रहता है कि कभी एक बंदा अच्छे से बिहेव नहीं भी कर रहा तो हम ये थोड़ा बोलेंगे चल हट। जब भगवान के सामने अगर हम कभी कड़ी चावल ले जाते हैं कभी छोले चावल ले गए हमने प्रसाद में बना लिया कभी पूरी छोले बना लिए भगवान ने कहा चल हट मुझे नहीं खाने हैं पूरी छोले जा लेके जा इसको हट। भगवान तो एक्सेप्ट कर लेता है ना भोग लगाते हैं भगवान हर चीज का भोग लगा लेते तो हम भी तो उसी भगवान का अंश है। तो जैसा भी बंदा अगर एक दिन बिहेव भी कर रहा है तो ठीक है यार आज तेरे कड़ी चावल खा लेते हैं कोई नहीं आज पालक की सब्जी खा लेते हैं। So I am correlating in my life the things with such examples. तो हमेशा याद रहता है. But yeah. just that was my add-on. Yeah. It's Thank you. good. Good. Thank you, both of you. Thank you so Yeah. much. Okay. We are on time. If there is nothing else, then I think we can stop the session today. Okay. Thank you so much, and continue doing your practices. It's gonna just amaze you with time. Okay. Thank you Thank so much, you. guys. Thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you.